grammar class. We have been learning kinds of sentences. So far, we have learned assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, and operative sentence. The last kind of sentence, that is imperative sentence, is left. तो आज का मेरा डेज का लेसन है imperative sentence. तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं कि what is an imperative sentence. Imperative sentence. Read the following sentences. Sentence number 1. Shut the door. Sentence number 2. Open the door, please. Sentence number 3. Take this medicine after lunch. Sentence number 4. Let's go to the picture. Now, in sentence 1, the speaker gives an order. In sentence 2, the speaker makes a request. In sentence 3, a doctor gives an advice. In sentence 4, the speaker makes a suggestion. Now, to define an imperative sentence or what is an imperative sentence, from the examples we have just seen or we have just read, from those examples we can say that a sentence that expresses an order, a command, an advice, a suggestion, and a request is called an imperative sentence. Now let's listen to a song. I think you have enjoyed the song. Now take a look at the sentences again. Sentence 1, shut the door. Sentence 2, open the door, please. Sentence 3, take this medicine after lunch. Now the sentences begin with a verb like shut, open, take. Now यहाँ पर देखिए जो sentences है ये verb से शुरू हुआ है. यहाँ ये shut से शुरू होता है, ये open से, ये take से. तो इस तरह से an imperative sentence begins with a verb. तो कोई भी imperative sentence जो होगा वो start ही होगा verb से. अब यहाँ पर देखिए look at the sentence. Please bring me a glass of water. अब इस सेंटेंस में देखिए and look at the sentence number 2. Open the door, please. इस सेंटेंस में the word please comes at the end of the sentence, and in this sentence the word please comes at the beginning of the sentence. तो कोई भी रिक्वेस्ट जो है जिसको हम प्लीज से शुरू करते हैं उसको आइदर वे और आइदर वे से हम रिक्वेस्ट वी कैन मेक इट, माने प्लीज से भी शुरू कर सकते हैं या प्लीज को आखिर में भी रख सकते हैं. तो समटाइम्स अ रिक्वेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड विथ प्लीज एंड आफ्टर दैट द वर्ब कम्स. क्योंकि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोगों को पता है कि हमारे टीचर फ्रॉम टाइम टू टाइम किस तरह के ऑर्डर्स बच्चों को देते रहते हैं. हियर आर सम एग्जांपल्स. अ टीचर गिविंग ऑर्डर्स इन द क्लासरूम. सेंटेंस 1, कीप क्वाइट. सेंटेंस 2, टेक आउट योर बुक. सेंटेंस 3, ओपन द बुक एट पेज 15. सेंटेंस 4, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. Sentence 5, draw a circle on your copy. Sentence 6, turn on the fan. Sentence 7, the class is over, switch off lights and fans. अब यहाँ पर देखिए हर एक सेंटेंस जो है imperative सेंटेंस है and each begins with a verb. इसमें keep से, इसमें take out, इसमें open, read, draw, turn on, switch off. बहुत सारे ऑर्डर्स जो है नेगेटिव नेचर के होते हैं. अभी तक हम लोगों ने जो देखा कि जो ऑर्डर्स थे वो तमाम के तमाम अफर्मेटिव थे. मतलब ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है इसमें कहीं भी नॉट या नेवर नहीं लिखा हुआ है. अब हम लोग जो है जो इम्पेरेटिव्स देखेंगे
वो नेगेटिव नेचर का है. दे बिगिन विथ डू नॉट और डोंट. वी कॉल देम सच इम्पेरेटिव्स नेगेटिव इम्पेरेटिव्स. कुछ एग्जाम्पल्स देखिए. सेंटेंस 1, डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम. सेंटेंस 2, do not litter the classroom. Sentence 3, don't cut nails with teeth. Sentence 4, don't drink chilled water. Sentence 5, don't catch a running train. Sentence 6, don't smoke. Sentence 7, don't spit on the road. Sentence 8, don't run on the busy road. Sentence 9, don't break the signal. So all these negative sentences are negative imperatives, and they all begin with do not, followed by the verb in the first form. आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर देखे होंगे कि इस तरह के कुछ नेगेटिव ऑर्डर्स वहां भी लिखे रहते हैं. I have just quoted them here. देखिए सेंटेंस 1, do not carry inflammable substances like kerosene, petrol, films, etc. Sentence 2, do not light up a stove inside the train compartment. Sentence 3, do not smoke in the train compartments. Sentence 4, do not travel without a ticket. Sentence 5, do not put any part of your body out while the train is in motion. तो आप ट्रेन में सफर के दौरान इस तरह के सेंटेंसेस दिखेगा. ये ऑन द वॉल ऑफ द कंपार्टमेंट ये सब लिखे रहते हैं जो कि डू नॉट से शुरू होते हैं. तो ये भी नेगेटिव इम्पेरेटिव्स हैं. कुछ ट्रैफिक रूल्स भी यहां मैंने लिखा है, इसको भी देखिए. ट्रैफिक रूल्स में जैसे एक नंबर देखिए, obey the traffic rules. Sentence 2, use helmet. Sentence 3, don't drive the vehicle fast. Sentence 4, tie the seat belt before driving. ये भी ट्रैफिक रूल्स है. इसमें देखिए तमाम सेंटेंसेस जो है they are all imperative sentence beginning with verb. आप अगर किसी मॉल में या किसी दुकान में जाते हैं तो देखिएगा दरवाजे के ऊपर इस तरह से लिखा रहता है. सेंटेंस 1 देखिए, पुल द डोर. सेंटेंस 2, पुश द डोर. इसी तरह से इफ यू विजिट ए डॉक्टर्स चैम्बर तो वहां भी देखिएगा दरवाजे पर लिखा रहता है जैसे कि टेक योर शूज ऑफ. आप इफ यू ट्रेवल इन ए बस, इनसाइड द बस you can get such kinds of imperatives. Beware of pickpockets and take care of your luggage. किसी के घर आप विजिट करने के लिए जाते हैं तो दरवाजे ही पर देखिएगा लिखा रहता है Beware of the dog. ठीक है. आप किसी रेलवे बुकिंग काउंटर पर आप जाते हैं टिकट लेने के लिए, वहां भी देखिए इस तरह से लिखा रहता है टेंडर एग्जैक्ट फेयर. चेक योर बैलेंस बिफोर लीविंग द काउंटर. तो यहां भी देखिए पुल, पुश, टेक, बिवेयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, टेंडर, चेक, तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं शुरू करते हैं किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस को. ऑल दीज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस. Imperatives are rules. Imperative sentences क्या होते हैं? They are rules. They are instructions. They are suggestions. यहां कुछ imperatives on hygiene के ऊपर लिखा हुआ है, इसको भी जैसा हम लोग रीड कर लेते हैं. मतलब कुछ रूल्स है, हेल्थ रूल्स है. जैसे एक नंबर में देखिए rise early. Sentence 2, go to bed early. Sentence 3, walk in the morning. Sentence 4, brush your teeth every day. Sentence 5, take a bath daily. Sentence 6, wash your hands before eating. Sentence 7, do not eat hurriedly. Sentence 8, chew food slowly. Sentence 9, drink plenty of water. Sentence 10,
eat fruits after food. Imperatives with letters, let's to make suggestions. अब कुछ imperatives ऐसे होते हैं जो लेटस से शुरू होते हैं या लेट्स से शुरू होते हैं. लेटस का मीनिंग होता है इनवाइटिंग समवन टू डू समथिंग. लेटस से जो भी सेंटेंस होता है उसको पढ़ने से ये समझ में आता है कि स्पीकर जो है किसी पर्सन को किसी बात के लिए इनवाइट कर रहा है. अच्छा, दूसरी बात यह है कि लेट्स जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेटर्स है, मतलब लेटर्स का शॉर्ट फॉर्म लेट्स है. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सेंटेंस 1, लेट अस प्रे टुगेदर. सॉरी, यहां पर एस आ गया है गलती से. लेट अस प्रे टुगेदर. सेंटेंस 2, लेट अस क्लीन द रूम. सेंटेंस 3, लेट अस हेल्प द ब्लाइंड मैन टू क्रॉस हिम द रोड. सेंटेंस 4, लेट्स गो टू द मॉल. सेंटेंस 5, लेट्स प्लांट ट्रीज. तो इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है लेट्स या लेटस से भी शुरू होता है. लेटस के बाद उसी तरह से वर्ब जो अपने फर्स्ट फॉर्म में रहता है. लेटस के बाद प्रे, लेटस के बाद क्लीन, इस तरह से वर्ब है. मतलब सेंटेंस विल बिगिन विथ लेट्स फॉलोड बाय वर्ब. उसी तरह से बहुत सारे इंपेरेटिव्स ऐसे भी होते हैं जो व्हाई डोंट वी से शुरू होता है. व्हाई डोंट वी, ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं टू मेक सजेशंस. ठीक है, जैसे सेंटेंस देखिए यहां पर लिखा हुआ है. सेंटेंस 1, व्हाई डोंट वी गो टू द बीच. सेंटेंस 2, व्हाई डोंट वी प्लांट ट्रीज. सेंटेंस 3, व्हाई डोंट वी रेज फंड्स फॉर साइक्लोन विक्टिम्स. सेंटेंस 4, व्हाई डोंट वी ओपन अ स्कूल फॉर गर्ल्स. सेंटेंस 5, व्हाई डोंट वी ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप. मतलब व्हाई डोंट वी का मतलब वही हुआ जो लेटेस्ट का मतलब होता है. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट्स गो टू द बीच, लेट्स प्लांट ट्रीज, लेट्स रेज फंड्स फॉर साइक्लोन विक्टिम्स, लेट्स ओपन अ स्कूल फॉर गर्ल्स, लेट्स ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप. तो बहुत सारे इंपेरेटिव्स व्हाई डोंट वी से भी शुरू होता है. उसी तरह से बहुत सारे इंपेरेटिव्स इफ यू वुडंट माइंड से भी शुरू होता है. इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. जैसे सेंटेंस 1 देखिए, क्लोज द डोर इफ यू वुडंट माइंड. सेंटेंस 2, ओपन द डोर इफ यू वुडंट माइंड. सेंटेंस 3, टर्न ऑफ द फैन इफ यू वुडंट माइंड. तो यहां हमने देखा कि इंपेरेटिव्स इफ यू वुडंट माइंड से शुरू नहीं हुआ, सॉरी, ये आखिर में हम इसको यूज करते हैं. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमको यूज करते हैं. ठीक है, तो ये था आज का मेरा क्लास इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का लेसन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.